Hello dear students, in today's class you are going to learn about some rules of subject-verb agreement. So the first thing is, what is subject-verb agreement? As the name suggests, when the verb agrees with the subject. जब verb subject के according बैठता है, and in English language there are many rules according to which you should put the verb. Actually, whenever you are writing something, you should follow these basic rules. Okay. Subject verbs, subject and verbs are the most basic and the most important element of the sentence. एक sentence का सबसे important जो part होता है वो है subject and verb. The relation between the subject and verb depend on two things. जो subject and verb का relation है वो two things पे, दो चीज़ पे depend करता है. एक है person and one is number. सब्जेक्ट का पर्सन क्या है? पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या और सब्जेक्ट का नंबर क्या है? क्या ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? उसी के आधार पर वी शुड use the verbs also. The number of the subject can be singular or plural, and the verb must be singular if the subject is singular. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. ठीक है. सो आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक द वर्ब. हमें नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्या ये सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है. उसी के बेसिस पर हम वर्ब भी यूज़ करेंगे. So there are many rules about subject verb agreements. In today's video you'll learn about few rules, because if I go on describing all the rules then the video will be large. Okay, I will publish video lessons on this topic in parts. Okay, so let's begin. The first rule. So the first and most basic rule about subject verb agreement is singular subject needs singular verb while plural subject need plural verb. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल है तो प्लूरल. तो इसमें जो वर्ब सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन वो है बी वर्ब. बी वर्ब सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं, एंड अदर वर्ब्स थोड़ा कम, मतलब अदर वर्ब्स में चेंजेस थोड़ा सा कम देखना आप देख सकते हैं, except it is when it is a simple present tense. Okay, if the subjects are a third person singular number, the verbs are used with s or es. Very important rule, and the basic rule is अगर third person singular है subject तो हम simple present tense में s या es लगाएंगे. When they are in simple present tense, the verbs with s or es are called singular verbs. जैसे सब्जेक्ट में अगर एस होता है तो वो प्लूरल हो जाता है. जैसे मैंगो सिंगुलर है बट मैंगोज प्लूरल है. ठीक है. बॉय सिंगुलर है बट बॉयज प्लूरल है. बट इन केस ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स में अगर एस लगाते हैं और ईएस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाते हैं, वो प्लूरल नहीं रहता है. अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट टू सब्जेक्ट. Okay, be verbs according to the number and person of the subject. be verb number and person के change होने पर तुरंत change हो जाता है. ठीक है. So this is the first rule. Let's move on to the next rule. That is, when the prepositional phrases separate the subjects from the verb, they have no effect on the verb. इसका मीनिंग ये है कि अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का वर्ब पर कोई असर नहीं होता है. ठीक है. जैसे सी द एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑन अफ्रीकन कंट्री. सो shows is the verb and a study is subject, but here it is separated by, इसके बीच कौन आ गया है? प्रीपोजिशनल फ्रेज. पर प्रीपोजिशनल फ्रेज का कोई इफेक्ट नहीं है.
देयर इज no effect of prepositional phrase on the subject. सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टडी, तो हम लोग ये जो वर्ब यूज़ किए हैं वो भी सिंगुलर यूज़ किए हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. दैट 80% ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल मतलब बहुत सारा पीपल, तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. ऑफ द कंटिनेंट, ऑफ द कंटिनेंट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है. ऑफ द कंटिनेंट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बट इसका वर्ब पर कोई असर नहीं. वर्ब भी, ये भी प्लूरल है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है. ओके, अंडरस्टूड. So again I am telling, when the prepositional phrase separate the subject and verb, subject and verb के बीच अगर prepositional phrase आ जाए तो उस prepositional phrase का verb के ऊपर कोई असर नहीं होता है. ठीक है. Verb will change according to the subject only. Next rule is rule number 3. Nouns connected by the conjunction and in the subject work as plural subject. अगर दो सब्जेक्ट है एंड उसके बीच एंड से जुड़ा हुआ है दोनों सब्जेक्ट, तो टोटल एक सब्जेक्ट कंसिडर हो जाएगा. जो पूरा सब्जेक्ट का फ्रेज कंसिडर होगा प्लूरल कंसिडर होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब भी यूज होंगे. जैसे देखो एलेक्स सिंगुलर है, देखो एलिस एंड मर्फी, एलेक्स भी सिंगुलर है एंड मर्फी भी सिंगुलर है, बट दे बोथ मेक ए ग्रुप एंड वो एक प्लूरल कंसिडर होगा. ठीक है. एंड द वर्ब विल बी प्लूरल. नेक्स्ट सेंटेंस इज रॉबिन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू गो want to go on a tour. रॉबिन एक सिंगुलर है और ये जो है हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है. हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और वो एक किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा प्लूरल. वो प्लूरल ही कंसिडर होगा और वर्ब भी प्लूरल यूज होगा. ठीक है. प्लूरल वर्ब मीन्स want. Here again I am reminding you, want means plural and wants अगर wants हो जाए that will be singular. अगर wants हो जाए that will be singular. Next, apples and mangoes are my favorite fruit. Let's talk about fourth rule, which is very important. If the conjunction and is replaced by, तो पहले हम थर्ड रूल में देखा था अगर एंड से कनेक्टेड हो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एंड से कनेक्टेड ना हो और किससे कनेक्टेड हो, दो सब्जेक्ट के बीच अगर टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय एंड एज वेल एज. अगेन आई एम टेलिंग, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय एंड एज वेल एज, ये सब हो प्रेजेंट हो तो द वर्ब will have no effect on the latter part of this. नेक्स्ट मतलब लेटर मतलब दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें कोई असर नहीं होगा. ठीक है. वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. So what is it is written here, the words prior to this expression. तो अगर दो सब्जेक्ट है और वो इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ है तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका कोई असर नहीं होगा. वर्ब कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा जो इनके पहले इन फ्रेजेस के आगे होगा. ठीक है. जैसे see some examples. Let's see some examples here. Tom along with his brother. तो ये एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया. How it is connected? It is they are connected with along with. तो along with है तो हम लोग his brother को कंसिडर नहीं करेंगे. हम
फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है टॉम विच इज सिंगुलर, तो हम लोग लिखेंगे इज, हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, एलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स। तो एलेक्स इज सिंगुलर but parents is plural, this subject is plural, okay, but the verb will follow, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, एज वेल एज से कनेक्टेड है, तो द वर्ब कौन सा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। एलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज accompanied by their टीचर मिस्टर रॉबिन्स। तो ये जो है मिस्टर रॉबिन, ये सिंगुलर है और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है एंड दे आर कनेक्टेड विथ accompanied by, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट कंसिडर होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लूरल, सो द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, आर। ओके, again they have repeated the rule 3 here so that you do not get confused. Note if these expressions, तो ये सब एक्सप्रेशन के जगह अगर एंड हो, दो सब्जेक्ट के बीच एंड हो, तो पूरा सब्जेक्ट plurally consider होगा। The subjects will be regarded as plural and the verbs have to be plural also, like Tom and his brother are going to city। तो ये जो पूरे सब्जेक्ट्स है, दोनों सब्जेक्ट ही एक साथ प्लूरल कंसिडर होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू रूल 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 5। some nouns are always singular and indefinite। कुछ सब्जेक्ट है वो हर समय ऑलवेज वो सिंगुलर ही है, सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। When these nouns become subjects, they always take singular verb। तो वो जब सब्जेक्ट की जगह पे होता है वो सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे any, no, then, some, every, each, when they are indefinite। Then anyone, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, each student, either, neither। So all this subject, all these words, if they are used in the place of subject along with the subject, then these will be considered as singular। ये सब singular consider होगा हमेशा। देखो what is next written, note that either and neither are singular। either and neither जो word है they are considered as singular जब वो और and nor के साथ नहीं होता है। when they are not used with or and nor, then either and neither are this। See some examples of it. Everybody wants to live happily। everybody, I have written, you must have noted that everybody is singular, तो इसके साथ जो verb है wants वो भी singular है। something is bothering him, something जो कि एक सिंगुलर है, इंडिफिनिट है, हमें पता नहीं समथिंग मतलब क्या बॉदर कर रहा है उसे, तो दिस इज सिंगुलर एंड इट इज followed by a singular verb, that is। next is no human being lives in that house। no human, no is used with the singular subject, okay, singular noun। नो देखो सिंगुलर नाउन के साथ यूज हुआ है, ह्यूमन बीइंग, देन द वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर। नाइदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू हैंडल इट। तो नाइदर इज ऑल्सो सिंगुलर, यहाँ पे देखो नाइदर इज सिंगुलर है एंड
इसके साथ जो वर्ब है इज, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. ईच स्टूडेंट हैज़, ईच स्टूडेंट जो एक ईच प्लस सिंगुलर नाउन जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा, ईच स्टूडेंट, तो उसके साथ जो वर्ब होगा हैज़, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स विच हैव टू पार्ट्स. जैसे कुछ नाउन का दो पार्ट्स होते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे सीजर्स. सीजर्स के दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं. शॉर्ट्स, आई ग्लासेस, देन पैंट्स, थॉन्ग्स, एंड देन जीन्स, ट्राउज़र. ये जो चीज़ें हैं इसका दो पार्ट है ना. ऐसे पैंट होते हैं एंड आई ग्लासेस दो होते हैं एंड सीजर्स जो है वो भी दो होते हैं. ठीक है, तो these words are always considered as plural. Remember this, also note down in your copy. Example, my pants. देखो my pants है तो ये क्या क्या कंसिडर होगा, प्लूरल कंसिडर होगा एंड द वर्ब will be plural too. Next, your sunglasses, sorry, your eyeglasses are dirty. Eyeglasses क्या कंसिडर होगा, this will be considered as plural and it will the verb will also be plural. ठीक है. Next sentence, these scissors, जो कि एक ही सीजर है पर सीजर्स वर्ड ये एक प्लूरल वर्ड है. दिस वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. सो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी होगा प्लूरल. ठीक है. नोट, if these words are preceded by a phrase a pair of, they will be regarded as singular subject. ये जो मैं रूल्स पढ़ा रही हूँ आपको, you must write. You should not see this video only for the sake of watching. You just have to write each and every rules along with the example, 2 or 3 examples of each. ठीक है. क्या नोट में है, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये तो बोला मैंने पैंट्स, आई ग्लासेस, इसका दो पार्ट होता है इसलिए वो प्लूरल कंसिडर होता है. बट इन वर्ड्स के पहले अगर ए पेयर ऑफ बिठाया जाए, जैसे ए पेयर ऑफ पैंट्स, पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ ग्लासेस अगर बोला जाए तो ए यूज़ हुआ है, तो इसीलिए इस ये रिगार्ड हो जाए, सॉरी, इट विल बी रिगार्डेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट. रिमेंबर एंड नोट डाउन. आई एम अगेन टेलिंग दिस, इफ दिस वर्ड्स आर प्रिसीडेड, मतलब इसके पहले अगर अ पेयर ऑफ यूज़ किया जाए, दे विल बी रिगार्डेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स. तो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा तो इसका वर्ड भी होगा सिंगुलर. जैसे अ पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ यूज़ किया गया है पैंट्स के साथ, सो द वर्ब विल बी सिंगुलर. नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखो पेयर ऑफ यूज़ किया गया है तो this one will be singular and the verb will also be singular. Now see the next rule, which is quite tricky. This next rule is noun is a singular subject. None is a singular subject when it is used alone. अगर अकेले यूज होता है तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. When it is used with prepositional phrase starting with of, फिर इसके बाद अगर prepositional phrase यूज होता है, prepositional phrase जो कि of से स्टार्ट होता है, तो the subject can be both plural and singular. उसके बाद सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, अकॉर्डिंग टू दैट हम वर्ब भी यूज करेंगे. You might be confused, what did I say about this rule? See, none. See these two structures, none, उसके बाद of the, फिर अगर कोई इसके बाद एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. बट none देन of the, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Let's see some examples.
एग्जाम्पल्स, none of, दिस none फिर क्या है, ऑफ द मनी, मनी क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर, हैज इज सिंगुलर वर्ब, यू नो. देन नेक्स्ट इज none, next is none of the teacher, none of the teacher wants, ये जो टीचर है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, so the verb will also be singular. Next example, none then of the students, students क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हम लोग यूज करेंगे प्लूरल. ओके. नेक्स्ट, none of the bottles, bottles क्या है, ये प्लूरल है, तो हम लोग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर, which is also plural. Another thing, in the note you should see no plus plural noun takes plural verb. Okay, you should remember, very important, these all points are very important, you should write down in your diary and revise and practice. So no के बाद अगर कोई plural noun आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, you should write the plural verb, you should use plural verb. जैसा को no men are, no men are hungry, men प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ नो मैन तो क्या हो जाएगा, बोलो, यस, इज, नो मैन इज, तो रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन राइट नो मैन इज, you can say bad, you can say like this. So in this video I will not discuss more rules, otherwise the video will be large. Okay, in the next part or in the next lesson I will give you some more rules, you have to learn some more subject verb agreement rules. If you have liked this video, you should see the next video also. These are all these video lessons are made only for you people to learn, so if you write down all this and revise, then that will be very great for you and for me. And please write in the comment section whether you are liking all these classes or not.